Have you ever wondered how professional developers write clean, reusable, and efficient Python code? The secret lies in one powerful concept: functions. So, welcome back to the channel. In this advanced Python series, we are moving beyond basics and stepping into real world coding practices. And today, in session 1, we will start with the heart of Python programming: functions. What you are going to learn in this session, you will learn what functions are, why they are important, how to define and call functions, parameter and return values, real world example of reusable code. So now what is a function? So functions are a block of code which perform certain tasks. Now what task it can perform? So generally here we have given one example which is apple cutter. अब यहाँ पे दिया हुआ है apple cutter का example. That means उसका वर्क क्या है कि एप्पल को कट करना है. Every time that is used for helping to cut your apple in 3 or 4 pieces. Now how to cut that apple in 3 or 4 pieces? So आप यहाँ पे क्या करेंगे, एप्पल्स को जितने नंबर ऑफ टाइम उस एप्पल कटर के अंदर एंटर करेंगे वो आपको 3 या फिर 4 पीसेस में एप्पल कट करके प्रोवाइड करेगा. अब यहाँ पे आप इस एप्पल कटर को कितने भी नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं, कहीं से भी और कभी भी यूज कर सकते हैं. देयर इज नो लिमिट फॉर यूजिंग दैट. ओके, वैसे ही हमारा यहाँ पे फंक्शंस होता है. फंक्शंस आप जब भी डिफाइन करते हैं या फिर जब भी लिखते हैं तो यहाँ पे आप उस फंक्शंस को कभी भी यूज कर सकते हैं, कहीं से भी यूज कर सकते हैं और कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हैं. So here we have given the syntax of a function and how to define that function. So here you have seen we have given first def keyword. अब def keyword के बाद यहाँ पे you have to write your function name followed by a parenthesis. Parenthesis के अंदर हम कुछ inputs define करते हैं. Okay, कॉलन एंड्स द फंक्शन डेफिनेशन. कॉलन क्या करेगा, आपके फंक्शन जो आपने डिफाइन किया उसकी एंडिंग मतलब उसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू यूज दिस. फंक्शंस का जो भी लॉजिक होता है आप उसे अपने फंक्शन कॉलन के बाद अपने ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं. सो यहाँ पे दिस फंक्शंस ऐड द 2 more numbers. सो हियर वी आर एडिंग 2 numbers. तो जब भी आपको 2 numbers को ऐड करना है, सो एवरी टाइम यू कैंट राइट x प्लस वाई a प्लस b फिर वहां पे वैल्यूज एंटर करो. एवरी टाइम यू हैव टू राइट लाइक दैट. सो यहाँ पे यू कैन यूज फंक्शन इंस्टेड ऑफ राइटिंग code again and again. Now next, what this def function will do. So def is short for define. So suppose if you want to define your function, then you have to use this keyword. मतलब आपके function की starting ही def से होने वाली है. Telling a Python you are about to create a function. So ये क्या करेगा, आपके Python को बताएगा कि आप function create करने वाले हैं. Next here we have given function name. Function name is the name you are giving to your function. अब ये फंक्शन का नेम हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से या फिर क्या नाम देना है. हाँ, फंक्शन नेम में कुछ रूल्स फॉलो होंगे और वो रूल्स जो फॉलो होते हैं वो सेम एज वेरिएबल नेम के जो रूल्स हमने पढ़े थे सेम वही फॉलो होंगे. ओके, सो यू हैव टू यूज दैट सेम नेम. नेक्स्ट हियर वी हैव पैरेंथेसिस. There are there to potentially takes input. So parentheses are there to take potentially take input means आपको वहाँ पे inputs enter करने हैं. So this will be your parenthesis. Next here we have given colon. It indicates the start of the function's code block. आप उसी ब्लॉक के अंदर आपको वहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज डिफाइन करनी है. जो भी आपके लॉजिक है वो आपको कॉलन के बाद ही स्टार्ट करने. ओके, so these are the steps which you have to use while defining your function. So let's go to the practical. Okay, so here you can see I have written functions are a block of code which performs certain tasks, which is the definition of functions. You can use this. So let's take one example here. So here I am writing example 1. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे मुझे यहाँ पे लेना है, एक ग्रीट नाम का फंक्शन में बनाती है. हाउ टू क्रिएट अ ग्रीट फंक्शन. ठीक है, ग्रीट मीन्स सपोज जैसे आप वेलकम, थैंक यू, दैट इज ग्रीटिंग्स. ओके, यू कैन यूज फॉर दैट ग्रीटिंग. ओके, सो हियर आई एम राइटिंग def. You have to start your function with def keyword means defining a function followed by a function name. फंक्शन का नेम मुझे यहाँ पे greet प्रोवाइड करना है. अगेन आई एम गिविंग दिस parenthesis. नेक्स्ट हियर आई एम गिविंग हियर कॉलन. कॉलन के बाद आप यहाँ पे अपना लॉजिक लिख सकते हैं. लाइक हियर आई एम राइटिंग प्रिंट हेलो वर्ल्ड. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड. जस्ट गिव पैरेंथेसिस एंड डबल कोट से यहाँ पे एंड करना है. एग्जीक्यूट दिस. सो फर्स्ट यहाँ पे होता है डिफाइनिंग अ फंक्शन. सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डिफाइनिंग अ फंक्शन. ओके,
नाउ हाउ टू कॉल अ फंक्शन. अब फंक्शंस को हमने डिफाइन किया है, नेक्स्ट स्टेप होता है कॉलिंग अ फंक्शन. नाउ हाउ टू कॉल दैट फंक्शन, सो हियर वी कैन राइट कॉलिंग अ फंक्शन. How to call that function? Okay, just wait. Here you have to give your function name followed by a parenthesis, that will be a function calling. So just write here function name which is greet followed by a parenthesis. Now execute this. So every time if you are executing this, you will get output as hello world. आप इसे 10 बार execute करो, 10 times, 20 times execute करो, 30 times execute करो, answer will be same. यहाँ पे suppose I am repeating this, या फिर आप यहाँ से greet function call करते हो, so answer will be same. आपका यहाँ पे एक बार hello world आ जाएगा और यहाँ पे 4 times मैंने call किया है तो hello world will be 4 times. Again, let's create a function for adding two function. Okay, so create a function for adding two numbers. How to create a function for adding two numbers? अब यहाँ पे सबसे पहले we have to use diff keyword followed by a function name add, और इसके अंदर आप यहाँ पे दो parameters you can take, but parameters हम बाद में देखेंगे. Numbers a equal to 10 suppose I am taking, again b equal to 20 मैं यहाँ पे provide करती हूँ, and next c equal to a plus b. Here addition will be done. After that here you can print that function. Print यहाँ पे क्या print करेंगे हम c. Okay, execute this. अब यहाँ पे हमारा add function create हो गया. Next step will be calling a function. How to call that function? Add followed by a parenthesis. Execute this. अब यहाँ पे जो a और b की वैल्यू है वो हमारी फिक्स वैल्यू, मतलब एक बार फंक्शन क्रिएट हो गया तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते. एवरी टाइम इफ यू कॉल दिस फंक्शन आंसर विल बी सेम, लाइक 30 ही आंसर मिलेगा. आप यहाँ पे भले ही उसको रिपीट करें, आंसर विल बी 30 एवरी टाइम. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे a और b की वैल्यू फिक्स है. तो अगर आपको फिक्स नहीं रखना है सो यू कैन टेक यूजर इनपुट एज वेल. हाउ टू टेक यूजर इनपुट? ओके, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल अगेन. ओके, सो यहाँ पे 10 को रिमूव करके हियर यू कैन राइट इंट इनपुट. इंट इज योर टाइप कास्टिंग. बाय डिफॉल्ट हमारे इनपुट की वैल्यू स्ट्रिंग में होती है, सो वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू एन इंटीजर. सो यहाँ पे इनपुट फॉलोड बाय अ पैरेंथेसिस, जस्ट गिव डबल कोट्स, और यहाँ पे कमांड आपको प्रोवाइड करना है एंटर फर्स्ट नंबर. नेक्स्ट अगेन रिमूव दिस 20 int input, and there you have to write your enter second number. Okay, so here we can write enter second number. Okay, now execute this. Again we have this add function, but now we have user input. मतलब अब आपको input enter करना है, जो नंबर आप enter करना चाहो you can take that number. Execute this. Okay, here you have to give parenthesis. एग्जीक्यूट दिस. अब यहाँ पे देखो पहला कमांड आया एंटर फर्स्ट नंबर, मैं यहाँ पे 20 एंटर करती हूँ एंड अगेन नेक्स्ट नंबर इज 25. एंटर. नाउ यू आर गेटिंग आंसर इज 45. तो आप इसे मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं, कहीं से भी कॉल कर सकते हैं. सो यहाँ पे सपोज आई एम गिविंग 30 एंड 90, आंसर विल बी 120. ओके, सो दिस विल बी योर function, calling a function, and then first defining a function, then calling a function. Now next we have to see function with parameters. So let's write here functions with parameters. Again मैं same example लेती हूँ. Greet, suppose you want a function that greets a person by name, like hello. I'm sending the Prashant, so hello Prashant वहाँ पे आना चाहिए. I'm sending Shivani, so hello Shivani करके print होना चाहिए. So how to send that parameter, how to send that value? हम जो भी value send करें उसके according वो person को greet करना चाहिए. So how to greet that person? So again we have to use parameters for that. Okay, so यहाँ पे how to use that parameter? Def. Okay, greet with name. Okay, so this is function name. Okay, greet with name followed by a parenthesis. तो जो भी आपके पैरामीटर्स होते हैं वो आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखोगे. लाइक किसी भी पर्सन का नेम अगर हम सेंड करते हैं तो वो आके इस नेम में स्टोर हो जाएगा, इस नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. ओके, जस्ट गिव कॉलम. नाउ हियर आई वांट टू प्रिंट. व्हाट आई वांट टू प्रिंट? यहाँ पे डबल कोट्स में मैं प्रोवाइड करती हूँ हेलो plus here I am giving this name.
name again plus welcome to coding adventure. Here I'm writing, so welcome to coding adventure. Okay, execute this. Here we have created greet with name function. Now how to call that function? So just give parenthesis और यहाँ पे here we have to send the name. Suppose here I am sending the name as Alice. Execute this. Hello Alice, welcome to coding adventure. Here we have to give some space, so just give here space. Okay, so that clean coding there should be. Hello Alice, welcome to the coding adventure. Again if you are calling here greet with name and here I am sending the name as Smith. So अब क्या print होगा वहां पे? Hello. So ये जो Smith name है that is going inside this name variable. अब name variable के अंदर जा रहा है. Name is a variable. वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको प्रिंट करनी है तो आप उसे डबल कोट्स के अंदर नहीं लिख सकते. यू हैव टू राइट आउटसाइड ऑफ योर डबल कोट्स, राइट. सो यहाँ पे हेलो नेम इज आउटसाइड ऑफ योर डबल कोट्स बिकॉज दैट इज वेरिएबल. और इस नेम के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है? जब हम कॉलिंग के वक्त जो वैल्यू सेंड करते हैं वो वैल्यू जाके इस नेम में स्टोर हो जाएगी. ओके, नाउ एग्जीक्यूट दिस. यहाँ पे आ जाएगा हेलो स्मिथ, वेलकम टू कोडिंग एडवेंचर. ओके, आंसर विल बी सेम बट इनपुट नेम जो आप सेंड कर रहे हैं वो इनपुट नेम प्रिंट होगा. ओके, so by using parameter you can make your function more flexible and adaptable, right? Parameters allows you to your function to do different things depending on what you tell them. Okay, so now here we have learned function with parameter. Next, function returning some values. ओके अभी यहाँ तक हमारा फंक्शन डायरेक्टली आउटपुट दे रहा है. नाउ व्हाट यू वांट, दैट यू वांट योर फंक्शन शुड रिटर्न समथिंग यूजफुल. वो कुछ ना कुछ आपको वैल्यूज रिटर्न करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर आप उस वैल्यूज को यूज कर सके. हाउ टू यूज फंक्शन विथ रिटर्न? सो हियर वी कैन राइट फंक्शंस विथ रिटर्न. ओके, सो अगेन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ फॉर एडिंग टू नंबर्स. दो नंबर्स हमने जो पहले भी ऐड किए हैं. सो डेफ एडिशन नाम का फंक्शन. एडिशन में अगेन आई एम टेकिंग सम पैरामीटर. मुझे दो नंबर्स लेने हैं बिकॉज एडिशन परफॉर्म करने के लिए वी नीड टू नंबर्स. सो ए कॉमा बी. ओके, कॉलन दो बट हियर वी हैव टू रिटर्न अ वैल्यू. सो सबसे पहले एडिशन परफॉर्म करते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी. बट नाउ वी डोंट वॉन्ट टू प्रिंट दिस वैल्यू. मुझे ये वैल्यूज एडिशन की रिटर्न करवाना है. सो हियर वी हैव रिटर्न कीवर्ड रिटर्न एंड व्हाट यू वांट टू रिटर्न एडिशन ऑफ टू नंबर्स. दो नंबर्स का एडिशन किस में स्टोर है? सी में. एंड हियर आई कैन रिटर्न दिस वैल्यू लाइक दिस. एग्जीक्यूट दिस. Now if you perform addition, so यहाँ पे देखो addition, I am getting this 10, 20. एग्जीक्यूट करो. हियर वी आर डायरेक्टली गेटिंग द आउटपुट बट इस आउटपुट को अब आप स्टोर कर सकते हैं कहीं पे. जैसे यहाँ पे आई एम टेकिंग सम वेरिएबल, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाती हूँ. ओके, नाउ इफ यू आर परफॉर्मिंग दिस एडिशन 10 प्लस 20 का एडिशन में परफॉर्म करूंगी. यहाँ पे जाएगा वो 10 प्लस 20 का लॉजिक परफॉर्म होगा और 10 प्लस 20 का ये जो आउटपुट है दैट विल गेट स्टोर्ड इनसाइड दिस सी. और ये सी रिटर्न हो रहा है. सो नाउ इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस, तो जो भी आपका एडिशन है वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ है एंड हियर यू कैन प्रिंट दैट रिजल्ट. एग्जीक्यूट दिस. सो हियर आई एम गेटिंग दिस 30 वैल्यूज. Okay, which is getting stored inside this result variable. So let's take another example here, like here find. Write a function to output cube of a given number. Okay, so to output cube of a given number. How to perform that? सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है? वी हैव टू यूज डेफ कीवर्ड फॉलोड बाय अ फंक्शन नेम क्यूब ऑफ नंबर. ओके, फॉलोड बाय अ पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस के अंदर आपको एक नंबर लेना है विच इज n. आफ्टर दैट यहाँ पे आपको कॉलन प्रोवाइड करना है. कॉलन के बाद जस्ट एंटर. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडेंटेशन फॉलो होता है पाइथन में. सो वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 4 स्पेसेस, आपके 4 कर्सर के स्पेसेस यहाँ पे प्रोवाइड होती है. ओके, now what you have to find? Cube. So c equal to n into n into n. Okay, that will be a cube.
नाउ वी हैव टू रिटर्न दिस वैल्यू ऑफ सी, सो आप यहाँ पे रिटर्न सी कर सकते हो. ओके, सो हियर वी कैन टेक दिस क्यूब ऑफ अ नंबर. सपोज आई वांट टू फाइंड क्यूब ऑफ 9. 9 का क्यूब क्या आएगा? 729. अगेन क्यूब ऑफ 19 इफ आई एम गिविंग हियर 6859. अगेन क्यूब ऑफ 4 I am giving here, so 64. We will get that output. Again we have one more question here. Write a function. Okay, write a function in Python to output cube of a given number from a list. Cube of a given number from a list. Now what is mean by this? So यहाँ पे आपको क्या करना है? क्यूब ही फाइंड करना है, लेकिन हर एक वैल्यू लिस्ट से होनी चाहिए. सो फर्स्ट हियर वी शुड हैव वन लिस्ट. हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक लिस्ट हमें बनाना है. ठीक है, LST, जस्ट राइट सम वैल्यूज इनसाइड दिस. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज है. ओके, ओके, सो हियर वी हैव गिवन वन लिस्ट. अब आपको करना क्या है? यहाँ पे हर एक वैल्यू का क्यूब फाइंड करना है. ओके, हाउ टू फाइंड दैट क्यूब ऑफ दैट वैल्यूज? हर एक आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? नाउ यू हैव टू परफॉर्म इटरेटर्स. अब लिस्ट की हर एक वैल्यू के पास जाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन? वी कैन यूज लूप, राइट, फॉर लूप. उसके बाद हमारे पास वाइल लूप का ऑप्शन है. सो लेट्स यूज दैट. हाउ टू यूज लूप हियर? सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फंक्शन. वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन. सो यहाँ पे डेफ कैलकुलेट क्यूब. सो हियर आई एम राइटिंग कैलकुलेट क्यूब. और यहाँ पे आपका पूरी की पूरी लिस्ट ही हम सेंड कर सकते हैं. जस्ट राइट हियर L कॉलन दो फॉर I इन L. नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस? मैं इस पैरामीटर के अंदर पूरी लिस्ट सेंड करूंगी. हाउ टू सेंड दैट लिस्ट? ये हम कॉलिंग के वक्त देखेंगे. ठीक है, अब L में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पूरी लिस्ट आ रही है, मतलब यहाँ पे आप फॉर लूप अप्लाई कर सकते हैं इन लिस्ट. सो जस्ट गिव हियर कॉलन. और यहाँ पे आपको क्या करना है? डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो. यहाँ पे प्रिंट I इंटू I. Okay, execute this. Now we have to call that function calculate cube. कैलकुलेट क्यूब हमने कॉल किया यहाँ पे, और इसके अंदर यहाँ पे मैं पूरी की पूरी लिस्ट सेंड करती हूँ. एग्जीक्यूट दिस. हियर आई एम गेटिंग क्यूब ऑफ ऑल वैल्यूज फ्रॉम अ लिस्ट. Okay, so here you can see I am getting this cube of 2 is 8, cube of 3 is 27, cube of 4 is 64. Okay, so यहाँ पे आप functions को लिस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं. Okay, again we have to calculate here. Let's take a next example here. Write a function in Python to calculate sum of all elements inside a list. Sum of all elements inside a list. Okay, how to find sum of all elements? Already हमारे पास यहाँ पे list दिया हुआ है. Execute this. Now sum of number means यहाँ पे आपको क्या करना है? You have to find sum like this. 2 plus 3 plus 4 plus 6. Okay, 4 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9. So what will be the output for this? Answer will be here 39. Okay, so this will be our answer. Execute this. So now how to find the sum of all values from a list? So यहाँ पे again we have to create a function. So def sum function में यहाँ पे create करते हैं. Again here we have to send the list. Okay, here I am taking L1 या फिर L ले सकते हो. Again here we have to take one value sum नाम का एक हमें यहाँ पे वेरिएबल लेना है. Like here I am taking S, और S में इनिशियल वैल्यू you can store 0. अब यहाँ पे ये S इक्वल टू 0 का काम क्या है कि ये आपका हर एक वैल्यू का सम स्टोर करेगा. Now how it will store the sum? So सबसे पहले यहाँ पे for loop for I in L, और यहाँ पे आपका आएगा S इक्वल टू S प्लस I. What it is using? I जो है आपके लिस्ट के हर एक वैल्यू के पास जाएगा, और यहाँ पे
न्यू कैलकुलेशन न्यू वैल्यू विल गेट स्टोर, मतलब यहाँ पे नया कैलकुलेशन परफॉर्म होगा और नई वैल्यू यहाँ पे स्टोर होने वाली है। ओके, नाउ हियर यू हैव टू रिटर्न आउटपुट, रिटर्न भी करवा सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्रिंट भी करवा सकते हैं। सो हियर आई एम प्रिंटिंग, सपोज f string, here I am using sum of all values in a list equal to and dollar curly bracket, here you have to give s. Execute this. सम में आपको क्या करना है, पूरी की पूरी लिस्ट साइन करनी है, जस्ट एग्जीक्यूट दिस। ये देखो 39 आई एम गेटिंग, सॉरी ओनली यू हैव टू गिव हियर कर्ली ब्रैकेट। Okay, 39 will be the answer. Okay, so these are the some example of functions. Let's proceed for the next. Okay, so now we have some built-in functions in Python. Like first we have lambda function. Now what is mean by lambda function? तो जब भी आपके पास कोई small कोड है या फिर स्मॉल टास्क है करने के लिए, एवरी टाइम यू हैव टू डू दैट स्मॉल टास्क अगेन एंड अगेन, सो उसके लिए यू कैन यूज द लैम्बडा फंक्शन। लैम्बडा फंक्शन इज अ स्मॉल anonymous function defined in line used for quick single expression operation. Okay, so how to use this one line of lambda function? So let's take an example for this. यहाँ पे देखो, here we have given this syntax f equal to lambda. Lambda is a keyword which you have to use. Arguments just like a parameter, आप function में कुछ parameter pass कर रहे थे, that is आर्गुमेंट। यहाँ पे जब आप वैल्यूज को पास करते हैं दैट इज कॉल्ड एज आर्गुमेंट। अब जब आप फंक्शन के अंदर उसको एक्सेप्ट करते हैं दैट इज पैरामीटर। सो यहाँ पे ये एज अ आर्गुमेंट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पे वन लाइन एक्सप्रेशन, व्हाट इज मीन बाय दिस, ये हमेशा एक ही आंसर रिटर्न कर सकता है। यहाँ पे जैसे a star a comma a plus b, that is not allowed. At a time you can return only one expression, only one output inside a lambda function. So let's see this in practical. So let's see, suppose मैं यहाँ पे भी दो नंबर्स को ऐड करने का फंक्शंस मुझे लिखना है, लेकिन इसके पहले हमने दो नंबर्स के एडिशन का फंक्शंस देखे हैं। कैसे आपको पहले डेफ, देन फंक्शन का नेम, देन पैरेंथेसिस, उसके बाद कॉलन, नेक्स्ट लाइन में आपको एडिशन, फिर या तो उसको रिटर्न करना पड़ता है या तो प्रिंट करना पड़ता है, राइट? So you have to follow those steps for writing or for giving output of two numbers addition. अब यहाँ पे भी आपको using lambda function दो numbers का addition करना है. So that is only one line of code using lambda function. कैसे? Just give here add equal to, उसके बाद यहाँ पे lambda keyword we have to use. lambda keyword के बाद आप यहाँ पे arguments कितने भी सेंड कर सकते हैं. आपके पास 10 arguments हो सकते हैं, 10 parameters हो सकते हैं. सो सपोज दो नंबर्स का मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, a इक्वल टू b कॉमा इक्वल टू a प्लस b. व्हाट इज मीन बाय दिस कि इस ऐड में दो वैल्यूज आएंगी लेकिन आंसर एक ही रिटर्न होगा, उसका आउटपुट एक ही रिटर्न होगा क्योंकि लैम्बडा फंक्शन एक ही एक्सप्रेशन रिटर्न करता है ना. एग्जीक्यूट दिस. ओके, sorry, we have something wrong here, just wait for a second. Okay, here we have to give colon, not equal to, just give colon here. Now execute. अब ये दो पैरामीटर आप सेंड कैसे करोगे? ये आपका लैम्बडा का जो आंसर है, जो कीवर्ड है, वो यहाँ पे स्टोर होगा, लेकिन इसी के अंदर आप वैल्यूज भी सेंड कर सकते हैं. जैसे हियर आई एम सेंडिंग 2,3. एग्जीक्यूट दिस. आंसर वी आर गेटिंग एज 5. अगेन एड 90,80. हियर आई एम गिविंग. Again we are getting as output 170. Okay, so this will be all lambda function. अब suppose दो नंबर्स का आपको एडिशन करना है या फिर आप lambda function किसी iterable वैल्यू में भी यूज कर सकते हैं, but we will see that later. Okay, okay, जैसे आपको दो नंबर्स का स्क्वायर करना है. okay, दो नंबर्स नहीं, मतलब नंबर का स्क्वायर यू हैव टू परफॉर्म. सो हाउ टू परफॉर्म दैट? यहाँ पे अगेन यू हैव टू टेक लैम्बडा फंक्शन. अगेन यू कैन टेक वन नंबर एंड यू हैव टू परफॉर्म स्क्वायर. सो n into n या फिर n डबल स्टार 2. ओके, सो दैट विल बी पावर ऑफ 2, राइट? एग्जीक्यूट दिस. स्क्वायर ऑफ 2 आई वांट टू सी, या फिर स्क्वायर ऑफ 8. 8 का स्क्वायर 64. अगेन स्क्वायर ऑफ आई वांट टू सी स्क्वायर ऑफ 5, 25. okay, sorry, here we have to send some values. Okay, we are getting output as 25. So this will be our lambda function. Next function here we are going to see about map function. So let's see that.
So here we have given this map function. What is mean by map function? So map function returns a map object which is an iterator. अब iterator कौन सा iterator? जहाँ पे हम multiple values store कर सकते हैं, like list, tuple, set. So these are some iterator values और यहाँ पे ही आपका map फंक्शन परफॉर्म हो सकता है. मैप फंक्शन का यूज करके आप वहां पे कुछ न्यू डेटा ऐड कर सकते हैं. So map function returns a map object of the result after applying the given function to each item of a given iteration. Now what is mean by this? So यहाँ पे देखो, अब जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं लिस्ट में 0, 5, 8, 3, 2, 1. अब मुझे क्या करना है, उसमें हर एक लिस्ट के ये जो वैल्यूज है ना, हर एक लिस्ट की वैल्यू में मुझे 10 ऐड करना है. हाउ टू ऐड दैट 10? आपको फॉर लूप लगाना है. पहला एग्जांपल है हमारे पास कि वी कैन यूज फॉर लूप. फॉर लूप यूज करके आप हर एक वैल्यू के पास जाकर वहां पे 10 ऐड कर सकते हैं. दूसरा एग्जांपल है मैप फंक्शन. मैप स्पेशली इटरेबल वैल्यू के लिए ही यूज होता है. जब भी आपको आपके पास जो लिस्ट है उसको अपडेट करना है या फिर कुछ चेंजेस करने हैं, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, मतलब जहां पे इटरेबल वैल्यू है. इटरेबल वैल्यू मतलब जहां पे मल्टीपल वैल्यूज है और आपको हर एक वैल्यू में चेंजेस करने. So let's see that in practical. Let's take an example there. Okay, so first here we are going to see the syntax. What is the syntax of map function? So let's see here. So here we have to apply like this. map के अंदर यहाँ पे एक फंक्शन आता है और फंक्शन के बाद यहाँ पे इटरेबल वैल्यू आएगी. ठीक है, what is mean by this function? functions क्या है? So let's see that function. function आपकी वो वैल्यू है जहां पे आप जो इटरेबल वैल्यू होती है ना उसके हर एक एलिमेंट्स को पास करेंगे. okay, so how to write that? okay, so it is a function. Here we can write it is a function where map passes each element of iterable okay, so this will be a function iterable. what is that iterable value? iterable object to be map. ये आपका iterable क्या है? जहां पे मैप आपका परफॉर्म हो रहा है. ओके, सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म दैट iterable ऑब्जेक्ट टू बी मैप. सो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मैप होने वाला है. ऑब्जेक्ट टू बी मैप्ड. ओके, हियर वी कैन राइट लाइक दिस. now let's perform that. so suppose here I am taking one n and again I am storing multiple values like 5, 6, 4, 7, 8, 9. now what we have to find, यहाँ पे ये जो मेरी जो वैल्यूज है ना like 5, 6, 4, 7, मुझे इन सबको डबल करना है यूजिंग मैप फंक्शन. ओके, डबल करना है मतलब 5 है तो 5 2 जा 10, 6 है तो 6 2 जा 12, 4 है तो 4 2 जा 8, राइट? सो that you have to double your each value of your list. how to double that? तो यहाँ पे डबल करने के लिए पहले आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा. ओके, डबल करने के लिए क्या फंक्शन बना सकते हैं? सपोज हियर आई एम टेकिंग दिस ओके डबल वैल्यू करके एक फंक्शन का नाम है. पैरेंथेसिस दो, यहाँ पे आई आएगा या फिर एन या फिर एक्स ले सकते हो आप. ठीक है, और यहाँ पे आपको रिटर्न करना पड़ता है. जब भी आपको मैप फंक्शन यूज करना है तो रिटर्न यू हैव टू परफॉर्म x इंटू 2. डबल करना है मतलब x इंटू 2 वी हैव टू परफॉर्म एग्जीक्यूट दिस. ये आपका फंक्शन बन गया. नाउ वी हैव टू यूज दिस मैप फंक्शन. हाउ टू यूज दिस मैप फंक्शन? सो यहाँ पे देखो एक रेस्पॉन्स लेना है, देन मैप ऑफ. अब देखो सबसे पहले सिंटेक्स क्या था? फंक्शन. फंक्शंस मींस ना हियर यू हैव टू गिव योर फंक्शन नेम. फंक्शन का नेम क्या है? डबल वैल्यू. सो जस्ट राइट हियर डबल वैल्यू. ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू गिव कॉमा. कॉमा के बाद ना यू हैव टू राइट इटरेबल वैल्यू. इटरेबल वैल्यू आपकी कौन सी है? लिस्ट. लिस्ट किस में स्टोर है? इस n नाम के वेरिएबल में. सो हियर यू हैव टू सेम दैट n वैल्यू. एग्जीक्यूट दिस. आपका ये जो रिजल्ट है वो इस RES नाम के वेरिएबल में स्टोर है. बट यहाँ पे हम इटरेबल वैल्यू किसको कर रहे हैं? लिस्ट को. तो आप इसको प्रिंट भी लिस्ट में ही कर सकते हैं. अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करेंगे यू विल नॉट गेट दैट आउटपुट. यहाँ पे आपको मैप का एड्रेस मिलेगा. सो इफ यू वांट टू प्रिंट रिजल्ट ऑफ मैप तो यहाँ पे आप जिसको इटरेट कर रहे हैं उसके थ्रू आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं. लाइक यू आर इटरेटिंग द लिस्ट, सो यहाँ पे लिस्ट प्रिंट लिस्ट ऑफ. ओके, सो हियर यू कैन प्रिंट
लिस्ट ऑफ रिजल्ट। ओके, यहाँ पे देखो वी आर गेटिंग डबल ऑफ ईच वैल्यू। 5 था तो यहाँ पे 5 टू जा 10, देन 6 टू जा 12, 4 टू जा 8, 7 टू जा 14, 8 टू जा 16. So this will be the map function. Again, let's take one more example here. Again, here I am taking one more list here like items. We have some items here 1, 2, 3, 4, 5. ओके, अब यहाँ पे मैप के अंदर आप लैम्बडा फंक्शन का भी यूज कर सकते हो और विदाउट लैम्बडा फंक्शन भी यूज कर सकते हो। ना हियर व्हाट आई हैव टू डू, यहाँ पे मुझे स्क्वायर ऑफ अ नंबर फाइंड करना है विथ function or with using lambda function. Okay, so we are going to use both. Okay, just a minute. Example 2 here we can write example 2 just hash. Okay, execute this using lambda function. अब सबसे पहले using lambda function हमें map method apply करना है उसके अंदर, how to apply that. Okay, so here I can write using lambda function. ओके, सो यहाँ पे स्क्वायर नंबर लेती हूँ मैं, स्क्वायर नंबर इक्वल टू, देखो कैसे परफॉर्म होगा, मैप ऑफ। सबसे पहले यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, फंक्शन। ओके, यहाँ पे सबसे पहले यू हैव टू गिव फंक्शन नेम इनसाइड मैप फंक्शन, राइट। अब फंक्शन लैम्बडा इज ऑल्सो फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे आप डायरेक्टली उस लैम्बडा का यूज कर सकते हो, कैसे, लैम्बडा। आफ्टर दैट हियर आई एम गिविंग x, क्या फाइंड करना है, स्क्वायर, तो x डबल स्टार 2 दैट इज यूज्ड फॉर पावर, एक्सपोनेंट है वो हमारा, ठीक है, कॉमा। उसके बाद ये तो हो गया आपके फंक्शन के रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट आपको क्या देना पड़ता है यहाँ पे, इटरेबल वैल्यू। इटरेबल वैल्यू कौन सी है आपकी, लिस्ट। लिस्ट का नाम क्या है यहाँ पे, आइटम। सो हियर यू हैव टू गिव आइटम्स। ओके, दैट्स इट, एग्जीक्यूट दिस। आपके सभी एलिमेंट जो कि लिस्ट के अंदर है उन सभी का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। सो हाउ टू प्रिंट दैट, लिस्ट है तो लिस्ट के अंदर ही प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट लिस्ट ऑफ। लिस्ट ऑफ क्या प्रिंट करना है, स्क्वायर नंबर। सो जस्ट राइट हियर स्क्वायर नंबर। ओके, हियर यू कैन सी 1 square we are getting 1, square of 2 4, square of 3 is 9. Okay, now how to use this with user defined function, like we have to define a function with defined function. डिफाइन फंक्शन इज लाइक और नॉर्मल फंक्शंस जो अभी तक हमने परफॉर्म किए, लाइक फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन अ फंक्शन। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेफ स्क्वायर, हियर आई एम टेकिंग स्क्वायर, और पैरेंथेसिस में हियर आई कैन गिव वन नंबर विच इज नम। रिटर्न, रिटर्न क्या करवाना है हमें यहाँ पे, स्क्वायर। सो यहाँ पे नम इंटू नम वी कैन राइट, लाइक नंबर इंटू नंबर। ओके, दैट्स इट, ये हमारा डिफाइन हो गया फंक्शन। नाउ वी हैव टू यूज दैट इन मैप। हाउ टू यूज दैट इन मैप फंक्शन, सो अगेन यहाँ पे आई एम टेकिंग रिजल्ट वेरिएबल इक्वल टू मैप ऑफ। First here you have to give your function name which is square. So here I can give square, comma. After that you have to give your iterable value. Iterable value कौन सी है आपकी, item. So here just write your items. Execute this. Now here if you want to print, so यहाँ पे print list of result. Okay, execute this. So here you can see answer will be same, only method is different. So here you can use lambda function as well as here you can use your define function. Okay, next function here we have filter function. Okay, let's see how to use that filter. Okay, so here you can see we have given this filter function. Now what is mean by filter function, the filter method filters the given sequence with the help of function that test each element in the list और इन द सिक्वेंस टू बी ट्रू और नॉट। अब यहाँ पे फिल्टर का मीनिंग क्या हो गया कि वी हैव टू फिल्टर द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। अब जैसे हमारे पास कुछ इटरेबल वैल्यू है सेट की, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको इवन नंबर्स निकालना है, या फिर हमारे पास कोई लिस्ट की वैल्यू है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पे ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो 5 के मल्टीपल हो। सो यू हैव टू गिव सम कंडीशन देयर एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन डेटा विल बी फिल्टर्ड हियर। सो यहाँ पे देखो सिंटेक्स क्या है, first you have to give here filter keyword, after that function name, next यहाँ पे sequence, sequence मतलब आपकी iterable value है। function में क्या होगा,
function that test if each element of a sequence is true or not. Next यहाँ पे आ जाएगा sequence which needs to be filtered. It can be set, tuple, list or containers of any iterator. So let's see that in practical how to use this. Okay, so let's see example of filter function here, how to use a filter function. So here I am taking one example again. एक list create करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे lst. Okay, here I have some number like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, we have total 10 numbers here. अब मुझे यहाँ पे filter करना है कि मेरे जितने even numbers है सिर्फ और सिर्फ वो print हो. Okay, using filter function. अब सबसे पहले even number के लिए आपको यहाँ पे function define करना पड़ेगा. Like def is underscore even, that is a function name, parenthesis यहाँ पे n number, like that is your parameter जो कि values आएगी filter function में से iterable value से. Okay, so next here just give colon and after that you have to return. अब return क्या करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ even number return करना है. How to return that even number? n mod 2 equal to 0. What is mean by this? आप उस n नंबर में जैसे आपका ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो मॉड्यूलस का काम क्या है, इट विल ऑलवेज स्टोर द रिमाइंडर. तो रिमाइंडर स्टोर होगा और ठीक है, रिमाइंडर स्टोर होगा इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. मतलब आपका आंसर अगर 0 के इक्वल है दैट मीन्स दैट इज योर इवन नंबर, और अगर आंसर 0 के इक्वल नहीं है दैट मीन्स दैट इज योर ऑड नंबर. एग्जीक्यूट दिस. नाउ वी हैव टू अप्लाई योर फिल्टर्स. अगेन जस्ट टेक हियर रिजल्ट्स और यहाँ पे आ जाएगा हमारा फिल्टर फंक्शन, पैरेंथेसिस इज अंडरस्कोर इवन. सबसे पहले फंक्शन का नाम इज अंडरस्कोर इवन कॉमा. नाउ यू हैव टू गिव योर इटरेबल वैल्यू. कौन सी है, lst. सो जस्ट गिव हियर lst, एग्जीक्यूट दिस. अब वो आपका लिस्ट है तो आपको प्रिंट भी लिस्ट के ही अंदर करना पड़ेगा. प्रिंट लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स. एग्जीक्यूट दिस. सार जितने भी इवन नंबर्स है सिर्फ और सिर्फ वही फिल्टर होकर आएंगे. आपकी ये ओरिजिनल लिस्ट में चेंज नहीं होता है, आपकी ओरिजिनल लिस्ट एज इट इज है. ये जो भी चेंजेस होते हैं ये अलग से एक फिल्टर होकर लिस्ट में स्टोर होते हैं. ओके, सो दिस विल बी अ फिल्टर फंक्शन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In the next video, we will dive deeper into advanced aspect of Python function and explore more powerful real-world use cases. Stay tuned and I will see you in the next session. Thank you.